रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका खादिम अशरफुल उलमा मोहम्मद वक़ार उल हसन चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी विरसा मीडिया। तो नाज़रीन कराम, मैं अक्सर दोस्तों को अर्ज़ करता रहता हूँ कि आप कोशिश किया करें साहिब इल्म लोगों को सुना करें। उसके अंदर कई फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि अक़ीदे की पुख्तगी होगी, दूसरा ये है अमल की इस्लाह होगी, तीसरा ये है कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत बढ़ जाएगी और उसके अंदर ख़ुद आपके अंदर एक इल्म का शौक़ पैदा होगा। तो आज इस शख्सियत का ख़िताब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इनका मशहूर लक़ब था जो अक्सर कैस्टों के ऊपर, सीडीज़ के ऊपर लिखा होता था, इल्म और इरफान के मोती बखेरने वाली शख्सियत। मेरी मुराद फ़ख्रुल सादात शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद हुसैन अहमद अल मदनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो चले गया लेकिन उनकी यादें क़यामत तक बाकी रहेगी। ये इनका ख़िताब है शान इमाम हुसैन पर। यकीन माने वीडियो के अंदर ख़िताब है, बहुत तारीख़ी ख़िताब है। ज़िला मियाँ वाली के एक मशहूर इलाका मोच, वहाँ का ये ख़िताब है। आइए सबसे पहले शाह साहब का ख़िताब सुनते हैं, उसके बाद तबसरा करते हैं। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم.
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. زیب محفل صدر مجلس محترم المقام واجب العز والاحترام جناب حضرت علامہ عبدالرحیم شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ و مقتدر و محترم میر کاروان اہل محبت قافلہ سالار اہل سنت محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد رکن الدین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، نازش اہل سنت، خطیب و ادیب اہل سنت محترم جناب محمد عبدالرزاق سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مقتدر و محترم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان گرامی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے انتہائی محترم ساتھی جناب عبید اللہ خان صاحب کا، جن کی وجہ سے آج ایک بار پھر آپ جیسے اہل محبت کے درمیان مجھے ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے آج کی اس بزم خاص میں حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم الحرام شریف اپنے دامن میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے
اور بڑی مقدس یادوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مرحلے کی طرف رواں دواں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام ہر برس اپنے ایام مکمل کر کے ہم سے بچھڑ جاتا ہے، لیکن اس ماہ مبارکہ کے اندر جو عظیم قربانی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں پیش کی ہے، اس کی یادوں کی کثرت صرف اس مہینے تک محدود نہیں ہے۔ ہر مسلمان پورا سال نہیں بلکہ پوری زندگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں مبتلا رہتا ہے، اور ہر سچا دل امام کے حضور خراج تحسین پیش کرتا رہتا ہے۔ چونکہ رات کافی بیت گئی، میں آپ کی محبتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی عنایت ہے کہ آپ اتنا پیار کرتے ہیں، وگرنہ میری کیا اوقات یا میری کیا حیثیت ہے، میں اسے کبھی بھی بھولتا نہیں ہوں۔ یہ میری وجہ سے سب کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے سب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، اور انہی کی نسبت سے مجھے آپ اچھے لگتے ہیں۔ یہ وہی ایک رشتہ ہے، وہی ایک تعلق ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرحلے پر اکٹھا ہونے پہ مجبور کرتا رہتا ہے۔ مجھے ابھی حکم دیا محترم المقام جناب عبدالرزاق سیالوی صاحب نے کہ عبدالرحیم شاہ صاحب قبلہ کا حکم ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو ہم نے منعقد کیا ہے یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے، تو انشاءاللہ اسی مناسبت سے جتنی دیر میرا مالک چاہے گا میں آپ کے سامنے اپنے امام کا ذکر کروں گا، لیکن قبل اس کے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے استفادہ کریں گے جس آیت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت خوبصورت انداز میں ایک دعوت فکر دی ہے۔ اگر آپ نے اس آیہ مقدسہ کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا تو میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس آیہ مقدسہ کے لفظ لفظ میں عکس حسین نظر آئے گا، اور کربلا کی خونی تاریخ جو رقم کی گئی ہے اس کا پس منظر اور اس کا پیش منظر سب کچھ آپ دل کے آئینے میں دیکھ سکیں گے اگر آپ کی توجہ اس طرف مبذول رہی۔ تو آئیے بلا تمہید و بلا تاخیر میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ آیت کا نمبر میں اس لیے جناب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ میں اس آیت پہ ان ڈیٹیل تفصیلاً بات کروں۔ آپ کو اس آیت کا نمبر یاد رہے گا، آپ وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں اس آیہ مقدسہ کو اسٹڈی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ جس طرح اس آیت کو پڑھتے چلے جائیں گے میرے حسین کی عظمت آپ پہ واضح ہوتی چلے گی۔ ام حسبتم
अन तदखुलुल जन्नता। अब तवज्जो कीजिएगा, डायरेक्ट अल्लाह ताला आपसे मुखातिब है और आपसे अल्लाह ताला बात कर रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या तुम ये गुमान करते हो, क्या तुम ये ख्याल करते हो, अन तदखुलुल जन्नता, कि तुम जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। बात शायद मैं समझा नहीं सका, आप फिर तवज्जो से सुनेंगे। अम हसिब तुम, क्या तुम ये गुमान करते हो, क्या तुम इस ख्याल में बैठे हो कि अन तदखुलुल जन्नता, कि तुमको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इस आयत का मतलब यह है कि तुम्हारे और जन्नत के दरमियान कुछ और भी है, यानी आपके और जन्नत के दरमियान। मैं अब वाज़ेह बात कर दूं, सस्पेंस में नहीं रखना चाहता। अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नता, आपके और जन्नत के दरमियान एक करबला है। करबला कहते हैं इम्तिहान गाह को, यानी वो सेंटर जहां जाके इंसान इश्क व वफा का, तस्लीम व रिजा का, इताअत व इबादत का इम्तिहान देता है, ये उसको करबला कहा जाता है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का नुक्ता नजर यह है कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि यूं ही बैठे बिठाए तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, हालांकि तुम्हारे और जन्नत के दरमियान एक करबला मौजूद है। उस करबला से गुजरोगे, वो इम्तिहान दोगे, तो फिर उसके बाद जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। हम इंशाअल्लाहुल अजीज आया मुक़द्दिसा के आखिर तक पहुंचने के बाद फिर इसी जुमले पे वापस आएंगे। मैं पहले आया मुक़द्दिसा का तर्जुमा जनाब की समाअतों की नजर कर दूं। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा। अल्लाह ताला कहता है कि बात यह है कि तुमसे पहले जितनी भी कौमें गुजरी हैं, जितने लोग गुजरे हैं तुमसे पहले, तो उन पर जब भी कोई मुश्किल आई, जब भी कोई इम्तिहान का वक्त आया, जब भी उनको किसी करबला से गुजरना पड़ा, मस्सतहुमुल बअसाउ, मुश्किल वक्त आया, वद्दर्राउ, मसाइब की यलगार हो गई, वज़ुलज़िलू, उस मसाइब और मुश्किल घड़ी में वज़ुलज़िलू, वो लोग लरज उठे, वो कांपने लगे। हत्ता यक़ूल रसूल, आम आदमी तो एक तरफ रहा, उस दौर का रसूल भी बोल उठा, उस दौर का रसूल भी पुकार उठा। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए थे, माहू, और उस रसूल के साथ थे। यहां दो बातें हैं, सिर्फ बात आमनू की नहीं है, बल्कि वल्लज़ीना आमनू माहू की शर्त साथ है कि वो लोग ईमान भी लाए थे और रसूल के साथ भी थे। यानी ईमान लाने के बाद उन्होंने रसूल का दामन छोड़ नहीं दिया था, बल्कि ईमान लाने के बाद वो रसूल के साथ वाबस्ता रहे, रसूल की मईयत में रहे। तो वल्लज़ीना आमनू माहू हत्ता यक़ूल रसूल, उस दौर का रसूल भी पुकार उठा, और वो लोग भी जो ईमान ला चुके थे और जिनका लम्हा लम्हा रसूल के साथ गुजर रहा था, वो लोग भी पुकार उठे कि मता नसरुल्लाह, या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी, तेरी मदद कब आएगी, और कब तू हमारी मदद करेगा, कब हमें मसाइब की इस यलगार से छुटकारा मिलेगा, कब मुशक्कत, मेहनत और इम्तिहान और करबला के मैदान से हम बाहर निकलेंगे। ये उस दौर के साबका रसूल जो थे वो भी इससे पनाह मांगने लगे, और उस रसूल के साथी जो अहले ईमान थे वो भी इससे पनाह मांगने लगे। मेरा ख्याल है कि अभी तक आपके ज़हन में अक्से हुसैन नहीं आया होगा कि एक तरफ तो कुरान ये कहता है कि जब भी करबला सजी और उस करबला के अंदर आम आदमी नहीं, अगर नबी भी खड़े थे तो नबी भी पुकार उठा कि या अल्लाह अब बस कर दे, अब मजीद इम्तिहान नहीं दे सकते, अब वो लरज उठे हैं, अब वो मजीद इस मरहले से गुजर नहीं सकते हैं। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू मता नसरुल्लाह। अब इस आयत को आप करबला में ले आए कि साबका अदवार के अंदर जब भी किसी को इम्तिहान से गुजारा गया,
जब भी किसी को किसी सेंटर में करबला में बुलाया गया तो वो ये पुकार उठा कि मौला अब मुझ में मसाइब बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रहा, तो जरा करबला में चलें, जरा करबला में चलें। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मुझे वो कोई लम्हा दिखा दें जहां हुसैन तो हुसैन असगर ने भी पुकार के कहा हो कि मौला मैं इम्तिहान दे नहीं सकता। आप अगर थोड़ा सा गौर करें, आप थोड़ी सी तवज्जो करें, तो आपको मुख्तलिफ मकामात पर मैं थोड़ा सा ले चलता हूं जहां आप देखेंगे कि कहां कहां करबला सजती रही है। करबला को मैंने पहले वाज़े कर दिया है कि जहां भी मैं लफ्ज़ करबला इस्तेमाल करूंगा इसका माना होगा इम्तिहान गाह, कि जहां इम्तिहान देने के लिए अल्लाह ताला के मकबूल और महबूब बंदे आते रहे। हुजूर वाला हमने ये देखा कि एक करबला किनान में सजती है जहां बाप बेटे से जुदा होता है। फिर जो करबला स्टेज होती है, इससे और हम पीछे जाते हैं तो एक करबला मिना में सजती है जहां बाप के हाथ में छुरी है और बेटा अपनी गर्दन कटवाने के लिए मिना के मैदान में लेट जाता है। पहले मुझे बात तो करने दे। अब जरा गौर कीजिए हुजूर वाला, वहां जब मिना सजती है, मिना में करबला स्टेज होती है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब की रिजा के लिए हाथ में छुरी पकड़ के खड़े हैं और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए। इसी तरह किनान में जब ये करबला स्टेज होती है तो बेटा बाप से बिछड़ जाता है, बाप अपनी जगह पे उस बेटे की याद में रोता है और बेटा अपनी जगह पे बाप की याद में रोता है। यूं मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक कुछ के नजदीक 40 बरस बीतते हैं, कुछ के नजदीक ये 10 बरस का अपना दौरानिया होता है, कुछ के नजदीक, यानी मुद्दत में इख्तलाफ है। इस बात में इख्तलाफ नहीं है कि बाप और बेटा बिछड़े हैं, लेकिन यहां पे जो बात एक समझने वाली है वो ये है कि किनान हो या मिना, यहां हम जब दोनों तरफ देखते हैं तो इम्तिहान देने वाला भी नबी है, इम्तिहान लेने वाला भी नबी है। ये बात ज़हन में रखिएगा। इसी तरह हम किनान में जो करबला स्टेज होते देखते हैं तो यहां भी हमें दोनों नबी नजर आते हैं। जो बिछड़ गया है वो भी नबी है और जो बैठ के मुसल्ले पे रो रहा है वो भी नबी है। यानी दोनों तरफ हम देखते हैं कि दोनों तरफ नबी हैं। इसी तरह और कितनी करबलाएं सजती हैं, जूदी पहाड़ पर है, इसी तरह कोहतूर के रास्तों में है। ये सारी करबलाओं का सफर जितना भी है मैं अपनी शरह में लिख रहा हूं, तकरीबन इस पे मैंने 50 सफ़हात पे काम मुकम्मल किया है। वो सारी बात यहाँ पे मैं आपके समाअतों की नजर नहीं कर सकूंगा। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैंने उसमें बिल्कुल फ्रेश पॉइंट आउट किए हैं, लेकिन मैंने अपनी 26 बरस की मेहनत में यही समझा है कि जो कुछ मैंने पढ़ा नहीं था वो कुछ मैंने लिख दिया है। अब हुजूर जरा गौर कीजिएगा कि ये दो करबलाएं हैं, दोनों जगह पे हम देखते हैं कि दोनों तरफ नबी हैं। याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। लेकिन एक थोड़ा सा और सिमत में आपको ले चलता हूं, एक और दरवाजा खोलते हैं तारीख का कि मिना में जब करबला स्टेज होती है तो वहां पे हम जो चीज देखते हैं कि दोनों तरफ जो है नबी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी, ये दोनों नबी जो हैं ये इंतहाई कठिन मरहलों से गुजर के यहां तक आए हैं। मसलन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं तो अगर वो 11 बरस के हैं उस वक्त, या उस वक्त 18 बरस के हैं, या उस वक्त वो 22 बरस के हैं, रिवायात मुख्तलिफ हैं। तो आप जिस रवायत पे भी इत्तेफाक करते हैं, मसलन आप कहते हैं कि 11 बरस के थे या 18 बरस के थे, तो मैं ये कहता हूं कि 18 बरस तक मुसलसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मसाइब आलाम से लड़ते रहे। आपके ये 18 बरस का एक एक लम्हा दुखों की सेज पर गुजरा। कभी मां पानी तलाश करने के लिए सफा व मरवा पे दौड़ती है और कभी बेटा प्यास से बिलक बिलक पे जमीन पे एड़ियां मारता है और फिर जमजम का पानी हमें नसीब हो जाता है। इसी तरह हम ये 18 बरस का दौर देखते हैं तो 18 बरसों में वो कितनी रातें आई होंगी जब बेटे ने कुछ मांगा होगा और मां सारी रात मुसल्ले पे बैठ के रोई होगी कि मौला मेरा तो कमाने वाला कोई नहीं, मुझे तो मेरे सर का साईं छोड़ के सिर्फ तेरी रजा के लिए चला गया और आज मेरे बेटे की ये तलब है। और कितनी मर्तबा ऐसा भी हुआ होगा कि तलब और डिमांड पूरी ना हुई होगी
और फिर सारा दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी रोते हुए गुजर गया होगा। ये 4 बातें मैंने इसलिए की कि आप मेरे साथ वहां तक आ जाएं कि ये जो आज मैदान में 11 साल का या 18 साल का खड़ा है, तो 18 बरस से मुतवातिर इसे तो दुख सहने की आदत सी पड़ गई। ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा, और फिर मैं इसकी कड़ियां मिलाऊंगा करबला में जाके कि ये जो 18 बरस का आज अपनी गर्दन पे छुरी चलवाने के लिए लेटा हुआ है, इसे तो दुख सहने की आदत सी पड़ी हुई है। ये तो दुखों की दुनिया में रह के आया है, ये कोई आज नया नया इंटर नहीं हुआ है। और वो जो बाबा हाथ में छुरी लेके खड़ा है बेटे की गर्दन पे चलाने के लिए, इसे भी तो 18 बरस बीत गए हैं। ये जब छोड़ के चला था अपने बेटे को और बीवी को, तो एक टेले के पास से गुजरते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी को रोक लिया था। और 13वें पारे में सेकंड लास्ट रुकू के अंदर वो आयत गवाह है, जब आपने हाथ उठाए थे, कहा रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। तो यहां अल्फाज पे गौर कीजिएगा, ए हमारे परवरदिगार, इन्नी अस्कंतु, मैं ठहरा के आया हूं, मैं ठहरा के आया हूं, मिन ज़ुर्रियती। अब उलमा जो हैं, मैं अपने मुखालिफ उलमा जो हैं उनको दावत फिक्र दूंगा कि यहां पे मिन बयानिया है या मिन तवीजिया है। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती में मिन बयानिया है या मिन तवीजिया है। अगर मिन तवीजिया है तो इसका मतलब यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी औलाद में से एक बच्चे को, यानी कुछ को, मिन तबीजिया जो आ जाएगा, अपनी औलाद में से कुछ को मैं यहां पे छोड़ के जा रहा हूं, अपनी औलाद में से एक को छोड़ के जा रहा हूं। उस वक्त था ही एक, बात मेरी समझे नहीं, उस वक्त तो था ही एक, दूसरे तो थे ही नहीं। इसहाक अलैहिस्सलाम तो अभी पैदा ही नहीं हुए थे, अभी थे ही सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम। और आप कहते हैं मिन ज़ुर्रियती, अपनी औलाद में से, औलाद में से यानी 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, उनमें से एक को छोड़ के जा रहा हूं। तो उस वक्त था ही एक, किन में से एक छोड़ के जा रहे हैं? तो साबित हुआ जो आइंदा पैदा होने वाला है वो भी नबी के इल्म में है। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मैं ठहरा के आ रहा हूं, मैं उन्हें सकूनत पजीर करके आ रहा हूं, मिन ज़ुर्रियती, अपनी औलाद में से, बेवादिन, ऐसी वादी के अंदर, गैर ज़ी ज़रइन, जहां कोई पौधा नहीं है, जहां कुछ भी काश्त नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अगर वहां कुछ काश्त नहीं हो सकता, पौधा नहीं है, तो वहां पे कोई साया भी नहीं है, मकान तो है ही नहीं। वादी में छोड़ के आ रहे हैं, मकान में तो छोड़ के नहीं आ रहे, किसी सकनी जगह पे नहीं, ऐसी बेआबो गया वादी में छोड़ के आ रहे हैं कि गैर ज़ी ज़रइन, जहां पौधा होना साबका द्वार में तो दूर की बात है, आइंदा भी जहां पे कोई काश्तकारी नहीं हो सकती है, आइंदा भी जहां पे कोई पौधा नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल खुले मैदान में या अल्लाह मैं छोड़ के आया हूं। लेकिन इन द बैतिकल मुहर्रम, मैं तेरे घर का पड़ोसी बना के आया हूं उन्हें, तेरे घर के करीब उनको छोड़ के आया हूं। यहां मैं दूसरी दावत फिक्र दूंगा अपने मुखालिफिन को कि खुदारा इंसाफ का तराजू हाथ में पकड़े। अगर आपने इंसाफ का खून नहीं कर दिया है तो कम अज कम इंसाफ के साथ कुरान सामने रख के इतनी बात तो बता दें, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा को और अपने बेटे को वहां छोड़ के आए थे, तो क्या वहां पे बैतुल्लाह था? इन द बैतिकल मुहर्रम के अल्फाज जो 13वें पारे के सेकंड लास्ट रुकू में मौजूद हैं, वहां पे जो है कि मैं तेरे घर के पास छोड़ के आया हूं, तेरे घर का पड़ोसी बना के आया हूं। क्या वहां पे बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें थी? क्या वहां पे कोई घर मौजूद था? अगर नहीं था तो फिर इन द बैतिकल मुहर्रम आप क्या कहेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला? माअज़ल्लाह, झूठ नहीं बोला। अगर हुजूर उन्होंने सच बोला है तो फिर मौलाना बैठकर इस हकीकत को वाज़े क्यों नहीं कर देते कि घर अभी बना नहीं, नबी पहले जानता है। इन द बैतिकल मुहर्रम, ये 2 चीजें हैं। वैसे इस आयत पे अगर इसी सब्जेक्ट पे मैंने बात करनी होती तो कम से कम इसमें से 36 मसाइल ऐसे हैं, बाकायदा सब्जेक्ट हैं जिन पे बाकायदा बात हो सकती है।
तो आपने ये दुआ की, उस वक्त आप आंसू बहाते हुए जा रहे थे, तो आप छोड़ के चले गए, तो 18 बरस आप उधर रोते रहे या 11 बरस आप उधर रोते रहे और बेटा इधर रोता रहा। 11 बरस के बाद जब मुलाकात होती है तो आते ही फर्स्ट टाइम में अल्लाह का नबी क्या कहता है कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बाहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। तो बेटा कह क्यों नहीं देता कि बाबा एक तो पहले 11 बरस तक कभी आपने आके हाल नहीं पूछा, हम दुख में रहे कि सुख में, पानी मिला पीने को नहीं मिला, हमें पहनने को कपड़ा मिला कि नहीं मिला, मेरी माँ किस तरह मुशक्कत के साथ इन पत्थरों पे भागती रही, कितनी मर्तबा मेरी माँ के कदम जो थे वो जख्मी हुए और कितना खून बहा। ये पत्थर आज भी इस बात की गवाही देते हैं। बाबा 11 बरस के बाद आए भी हो तो फिर हाथ में छुरी पकड़ के, पहले घर नहीं रहने दिया, अब जान लेने के लिए आ गए हो। तो वहां भी ये देखिए कि उन्होंने कतई तौर पे बिल्कुल कोई शिकवा नहीं किया। उन्होंने कहा कि या अबती फ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, बाबा आपको जो हुक्म मिला है आप उस पे अमल कीजिए, अन करीब आप पाएंगे मुझे। सतजदुनी, ये सीन जो है तजदो पे सतजदो, तो इसका बना के देख लीजिए, ये माजी करीब का बन जाए, सतजदुनी अन करीब, बहुत जल्द आप पाएंगे मुझे, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो, मिनस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों में से हो जाऊंगा, मैं सब्र करने वाले हूं। तो आपको लिटा दिया गया। अब ये 11 बरस जो बाकायदा दुख सहता रहा है, भी एक आम आदमी दोपहर को, गर्मियों की दोपहर को निकलता है तो वो गंदम नहीं काट सकता, लेकिन काश्तकार जो है वो आदी है, वो तपती हुई दोपहर में भी जाके गंदम काटता है, अपनी फसल काटता है, पानी लगाता है, तपती हुई दोपहर में वो काम कर रहा है। इसी तरह मजदूर मेहनत तो मुशक्कत का आदी, हम वो काम नहीं कर सकेंगे, हम उसके साथ सारा दिन जिस तरह वो चलता है उसी तरह जवामर्दी के साथ नहीं चल सकेंगे। पूछा क्यों? कहा वो तो आदी, नहीं समझ रहे मेरी बात, वो आदी है, वो 11 बरस का है तो आदी है, वो 18 बरस का है तो आदी है, उसे तो दुख सहने की आदत है। अब जो 18 बरस का मुसलसल आदी है, जब वो लेट जाता है तो उस वक्त वो कहता है कि बाबा छुरी चलाने से पहले 2 काम कीजिए, मेरे हाथ बांध दीजिए और अपनी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए। दोनों आदी, दोनों दुख सहने के आदी, बाप भी बेटा भी, और दोनों नबी हैं, दोनों नबी हैं। और वो जो दुख सहने का आदी है वो कहता है कि बाबा मेरी आंखों पे पट्टी बांध, अपनी आंखों पे पट्टी बांध, मेरे हाथ बांधने। क्यों? कहा बाबा बेशक आप आदी हैं, बेशक हम बिछड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी जब गर्दन पे खंजर चलेगा, जब ये मेरा लहू बहेगा, तो उस वक्त शायद आप बर्दाश्त न कर सकें, और हो सकता है कि कोई एक लम्हा सा आके यूं ना गुजर जाए कि आपकी जो उसके साथ मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत कहीं रास्ते में रुकावट न बन जाए, कोई रेजिस्टेंस ना उसके दरमियान पैदा कर दे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप का सफर जो है उसके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा हो। मेरे हाथ इसलिए बांधने के बाबा जब छुरी चलेगी, लाख में आदी हूं दुख सहने का, लेकिन जब ये जख्म लगेगा हो सकता है कि मेरा हाथ ना उठ जाए और एक लम्हे को आपको छुरी ना रोकनी पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप और आपके यार के दरमियान, आप और आपके महबूब के दरमियान, आप और आपके दोस्त के दरमियान एक लम्हे का भी फासला ज्यादा ताखीर से तय हो, मैं ये नहीं चाहता। अब जरा गौर कीजिए, हैं भी दोनों नबी, हैं भी दुख सहने की आदी, दुख सहने के आदी, फिर भी आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं, हाथों को बांध रहे हैं कि कहीं तड़प कर ताखीर का सबब ना बन जाए। दोनों नबी हैं, दोनों आदी हैं। वो जो 6 माह का मैदान में आया खड़ा, वो तो दुख सहने का आदी भी नहीं, वो तो फर्स्ट टाइम में एंटर हुआ है करबला के अंदर, वो तो पहली बार आया है करबला के अंदर। जिस तरह बाप ने यहां पूछा था, ये हर करबला की एक तारीख है कि बाप बेटे को पूछता है। वहां भी शहजादा अली असगर को बाप ने जाके पूछा था कि बेटा मुझे सिर्फ इतना बता दे। अब तेरी मां कहती है कि तुझे पानी चाहिए, तेरी बहन भी रो रो के मुझे मजबूर करती है कि भाई के लिए पानी चाहिए, बेटा तू सिर्फ मुझे एक बार बता दे कि तेरी खातिर क्या बाबा भीख मांगे, हाथ फैलाए? हमारे खानदान की ये रीत तो नहीं है।
ہم آج تک مانگتے تو نہیں ہیں، ہمارے تو در پہ منگتوں کی لائن لگی ہوتی ہے، ہم نے آج تک مانگا نہیں۔ اور بیٹے یہ بھی سن لینا کہ آج مجھے اپنوں سے نہیں، تیری خاطر پھر یزید سے مانگنا پڑے گا، پھر یزید سے مانگنا پڑے گا۔ اب جس طرح وہاں کربلا میں مکالمہ ہوا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہاں بھی مکالمہ ہو رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں 18 سال کے بیٹے سے مخاطب ہے باپ، یہاں 6 ماہ کے لال سے، یہاں 6 ماہ کے لال سے مخاطب ہے بات۔ اور یہاں ہو سکتا ہے کہ صبح آپ کو کوئی پریشان کرنے کی کوشش کرے، یہ جی 6 ماہ کے لال کے ساتھ شاہ صاحب بات کر گئے، 6 ماہ کا بچہ بھی کبھی بولتا ہے، تو 6 ماہ کے بچے کی بات کرتا ہے، مریم کی گود میں 1 دن کا بچہ بولتا ہے، سیدہ مریم کی گود میں 1 دن کا بچہ بول رہا ہے۔ یہاں پہ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ پہ اعتراض کرنے والا وہ تھوڑا نالج رکھتا ہوگا تو وہ کہے گا جی وہ تو نبی تھے اس لیے بولے ماں کی گود میں، آپ غیر نبی کی بات کریں، شہزادہ علی اصغر کو نبی تو نہیں تھے، تو اٹھا لیجئے بخاری، حضرت جریج پر جب ایک زانیہ عورت نے الزام لگایا، وہ جو ایک مشہور واقعہ ہے نا، وہ عبادت کر رہے تھے، ماں آئی آواز دیتی رہی، وہ عبادت میں مصروف تھے، اب دل میں سوچا اطاعت رب کی کروں یا ماں کی آواز کا جواب دوں، تو پھر سوچا کہ پہلے نماز مکمل کر لوں بعد میں ماں کو جواب دوں گا۔ ماں ناراض ہو کے چلی گئی اور یہ دعا کر کے گئی کہ یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کوئی بدکار عورت اس کے سامنے نہ آئے، کوئی بدکار عورت سے اس کا واسطہ نہ پڑے۔ تو ایک بدکار عورت نے ان کو دعوت گناہ دی، وہ نہ مانے، وہ چلی گئی کسی غیر کے پاس، وہ حاملہ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ حاملہ ہوئی تو قوم کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پیٹ میں کس کا عمل ہے، تو اس نے نام لے دیا حضرت جریج کا۔ لوگ آئے حضرت جریج پہ، انہوں نے آ کے سخت انہوں نے ستم کیے، ان کا صومعہ، ان کا عبادت خانہ جو تھا وہ گرا دیا، ان کو مارا، اپنا بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا۔ آخر انہوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے، مجھ سے بات تو کرو، کس بات پہ جبر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو نیکی کا یہ ڈھونگ رچائے پھرتا ہے اور دوسری طرف وہ زانیہ جو ہے اس کے پیٹ میں تیرا ناجائز بچہ ہے۔ حضرت جریج نے کہا کہ تھوڑی سی مجھے اجازت دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اجازت ہے، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 نفل پڑھے، یہ بخاری شریف میں ابھی روایت پڑھنے کو تیار ہوں، متن بھی پڑھنے کو تیار ہوں، سند بھی پڑھنے کو تیار ہوں، باوجود اس کے اگر پھر بھی تسلی نہ ہو تو سند پہ بحث کرنے کو بھی تیار ہوں۔ امام بخاری کے مشائخ ہیں سارے جو یہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جریج نے 2 نفل پڑھے، وضو کیا، مصلی بچھا کے 2 نفل پڑھے اور اٹھ کر سیدھا اس عورت کے پاس چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے آپ نے آواز دی کہ یا بابوس، یہ الفاظ ہیں، یعنی روایتیں 2 ہیں، ایک تو ہے کہ اس کے گود میں بچہ تھا، ایک ہے کہ اس کے پیٹ میں ابھی بچہ تھا، تو اس کے پیٹ والے بچے کی طرف آپ نے اشارہ کر کے اسے کہا کہ بتا تو کس کا نطفہ ہے، تو کس کا بیٹا ہے؟ تو پیٹ کے اندر سے آواز آئی کہ میں جریج کا نہیں فلاں چرواہے کا بیٹا۔ اچھا جی، اگر وہ پیٹ میں نہیں ہے، ماں کی گود میں ہے، تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اب اس بچے نے جواب دیا۔ تو میں مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں، وہ بات تو اپنی جگہ پہ رہی کہ بچہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ وہ جو بچہ ماں کے شکم میں پلا، نطفے کی صورت میں آیا، اب وہ پیدا ہوا ہے، وہ 2 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، 5 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، اب وہ ڈیفینیٹلی بتا رہا ہے کہ میرا فلاں باپ ہے، جریج میرا باپ نہیں۔ نہیں میری بات نہیں سن رہے، اب وہ ڈیفینیٹلی بتا رہا ہے کہ جریج میرا باپ نہیں، فلاں چرواہا میرا باپ ہے اور میری ماں زانیہ ہے، بدکارہ ہے، اس نے فلاں سے فعل بد کروایا جس کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ نبی علیہ السلام اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، صحابہ نے اس روایت کو بیان کیا، امام بخاری سے مختلف ابواب کے تحت لے کے آئے ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، اس بچے کو اللہ تعالیٰ علم دے دیتا ہے؟ وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات کو جانتا ہے کہ میری ماں کہاں گئی تھی۔ میری بات سمجھیے گا، ذرا غور کیجیے گا، وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات کو جان رہا ہے کہ میری ماں کس کے پاس گئی تھی، میں کس طرح مارز وجود میں آیا۔ بنی اسرائیل کا ایک عام بچہ جو نطفہ ناتحقیق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ علم دے دیتا ہے۔
इससे बड़ा इंसाफ का खून क्या होगा कि जब सरकार की बात आए तो पेशानी पे शिकने नमूदार हो जाएं कि नबी पहले की बातें नबी किस तरह जानता है, बाद की बातें। और इसी रवायत में आगे चलिए कि एक माँ दूध पिला रही, यही जो मैंने हजरत जुरैज वाली रवायत पढ़ी है, इसी में आगे है कि एक माँ दूध पिला रही है अपने बच्चे को, तो सामने से एक आदमी गुजरता है घोड़े पे सवार होकर, बड़ी शान और शौकत के साथ, आगे पीछे उसके खुद्दाम हैं। माँओं की आदत होती है कि माँ जब भी कोई बड़ी चीज तो कहती है कि या अल्लाह मेरे बेटे को भी ऐसा ही बना दे। तो उस माँ ने ये दुआ की कि या अल्लाह मेरे बेटे को भी ऐसा ही बना दे। वो बच्चा जो दूध पी रहा था, फतरा का सदिया, उसने अपनी माँ का दूध छोड़ दिया, उसने अपनी माँ का दूध छोड़ दिया। ये नबी पाक बयान कर रहे हैं कि उस बच्चे ने अपनी माँ का दूध छोड़ दिया और मुंह उस तरफ करके कहने लगा कि या अल्लाह मुझे इस जैसा ना बनाना, या अल्लाह मुझे इस जैसा ना बनाना। और इसी तरह फिर एक औरत गुजरती है जिसके पांव में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं। आप क्या सुनेंगे, मैंने क्या सुना, जरा गौर कीजिएगा। मसलूमी की हालत में वो औरत गुजर रही है, तो मां ने जब उसको देखा तो फौरन कहा कि या अल्लाह मेरे बेटे को इस तरह ना बनाना, फतरा का सदी। फिर बच्चे ने फिर दूध छोड़ दिया और उस औरत की तरफ मुंह करके उस बच्चे ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे ऐसा ही बना, मुझे ऐसा ही बना दे, मुझे ऐसा ही बना दे। अब कौन इसकी डेफिनेशन करेगा, किससे हम पूछेंगे कि वो उस जैसा क्यों नहीं बनना चाहता, वो उस जैसा क्यों बनना चाहता है, ये सारा मुकालमा। अब इसकी वजाहत सरकार करते हैं कि उस औरत ने आखिर मजबूर होकर उस बच्चे को मुखातिब किया, तू कैसा है। मैंने कहा या अल्लाह इसे उस जैसा बना दे, तूने इनकार कर दिया। मैंने कहा या अल्लाह इस जैसा ना बनाना, तू कहता है कि इसी जैसा बना दे। वजह उसकी क्या है, तो वो बच्चा अब अपनी माँ से मुखातिब हो कहता है, माँ जिसकी शान और शौकत को देख के तू भूल गई है, वो इस इलाके का सबसे बड़ा बदतरीन जाबिर शख्स था, जालिम शख्स था, और मैं जालिम बनना नहीं चाहता। और या अल्लाह ये जो मजलूमा गुजर के गई है, जिस पे जना का, चोरी का इल्जाम लगाते हुए लोग जा रहे थे, ये बिल्कुल नेक है, पारसा है, इसने कोई चोरी नहीं की, इसने कोई जिना नहीं किया, ये बिल्कुल पारसा है। तो चोरी सामने थोड़ा करनी थी, अगर चोरी की या नहीं की तो ये माजी की बात है, कल या परसों या किसी वक्त उसने की होगी। ये तो गोद में लेटा हुआ है, ये उसके साथ है। उसने अपनी जिंदगी में जिना किया है या नहीं किया, ये मौके का गवाह तो है नहीं। ये क्या वहां पे, ये तो मां की गोद में लेटा हुआ है, ये तो अभी चल नहीं सकता है। तो ये गोद में लेटा हुआ बनी इस्राइल का बच्चा है, ये गुजरने वाले लोगों के हालात को जानता है, मेरा मदीने वाला कुछ भी नहीं जानता है। तवज्जो कर रहे हैं हुजूर। तो मेरा ख्याल है ये दो चार बातें याद रखिएगा कि जब कोई आपसे ये कहे कि जी वो 6 माह के सैयदना शहजादा अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो किस तरह बोल सकते हैं, बाप उनके साथ किस तरह टॉक कर सकता है, वो तेरा बच्चा नहीं था, वो हुसैन का बच्चा। बात समझ में आ रही है सही? तो उसे कहिएगा कि जुरैज के सामने बच्चे ने बोल के दिखाया। इसी तरह बनी इस्राइल का एक और बच्चा बोला, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोले। अभी भी अगर बात पूरी तरह समझ में ना आ रही हो तो आगे चले आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही किसने दी थी? वो शाहिद शाहिद मिन आलिहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का गवाह कौन बन के आया था? बड़े बड़े तो सारे मुखालिफ थे, एक बच्चा था जिसने गवाही दी और उसने पूरी हकीकत बयान की कि देखो कमीज फटी हुई किधर से, आगे से फटी है, पीछे से फटी है। अगर कमीज आगे से फटी है तो औरत सच्ची है जुलेखा, अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, ये भागे होंगे, उसने पीछे से पकड़ा होगा। ये वो सारी सूरत हाल बच्चा बयान कर रहा है। हुजूर वाला इंसाफ के तकाजों को सामने रखिए कि नबी की गवाही देने के लिए रब बच्चे को क्यों ला रहा है, जिब्राइल को क्यों नहीं भेजा?
इसराफील को क्यों नहीं भेजता, मीकाईल को क्यों नहीं भेजता, इजराइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम किसी मुकद्दस फरिश्ते को भेज देता। कौन इनकार करने की जुर्रत रखता जब फरिश्ता आके सामने उनके गवाही देता। लेकिन बच्चे से अल्लाह ताला गवाही दिलवा रहा है ताकि आने वाले वक्तों में बाकायदा ये अकीदा मुसल्लमा बन जाए। वो जब चाहता है, जिसको चाहता है, इल्म की दौलत अता कर देता है। जब एक आम बच्चे को वो इल्म की दौलत अता करता है तो ज़हरा का बाबा जो उसका महबूब है, उनको अल्लाह ताला कितना इल्म फजल की दौलत से नवाजता होगा। तो सैयदना इमाम हुसैन, सब कह दीजिए रज़ी अल्लाह, और ऊंची आवाज से, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से पूछा, बात कहां थी कि उधर वाला आदि था, वो तो 11 बरस दुख सह के आया था ना, फिर भी कहता है कि मेरे हाथ बांध दो। और ये तो किस मां का बेटा है जो शाही खानदान में पली, जो शहजादी है, जिसने कभी दुख देखे तक नहीं। इमाम हुसैन ने कहा था कि तू दुख जानती नहीं, तू करब जानती नहीं, तू तो शाही ईवानों में पल के आई है, तू कहां ज़हरा के बेटे के साथ करबला के रेखजारों में धक्के खाती फिरेगी। तो ये अल्फाज शहरबानों के कयामत तक के लिए तारीख के औराक पर सुनहरी रूप में रकम है। उसने कहा था कि हुजूर वाला, मुझे शाही ईवानों में उतना लुत्फ नहीं आया जितना आपके कदमों में। आपने उस बच्चे को मुखातिब किया कि बेटा, तेरी खातिर हमारे खानदान की रीत नहीं है मांगना, हमने कभी नहीं मांगा, हमने आज तक दिया तो है, लिया कभी नहीं, कभी मांगा नहीं, अपनों से नहीं मांगा, गैरों से क्या मांगा। हमें तो नाना बता गया कि ला सालुकुम अलैहि अजरा, पत्थर खाए हैं तुमसे नहीं मांगता, गालियां खाई हैं तुमसे मुआवजा नहीं मांगता। हमें तो नाने ने बता दिया है कि तुम उस खानदान से हो कि मांगोगे नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी दोगे तुम, मांगोगे नहीं। लेकिन बेटा, औलाद के सामने हर कोई बेबस हो जाता है। तू अगर चाहता है तो 6 माह का है, तो तेरे लिए हम तारीख को थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं, तेरे लिए एक नई तारीख रकम होती है करबला में। तू अगर कहे तो आज तेरा बाबा अपने खानदान की रिवायत को तोड़कर दुश्मनों के सामने हाथ फैला दे। मैं कुरान पाक सामने रखकर डंके की चोट पे कहता हूं कि पंघूड़े में लेटे हुए शहजादा अली असगर ने 3 मरतबा अपना सर यूं हिलाया, अपना सर यूं हिलाया, इनकार में सर हिलाया, और सर हिलाकर ये कह दिया कि बाबा, मेरी खातिर अपने खानदान की रीत मत तोड़ना, ये सांस तो आनी जानी है। बाबा, मुझे अब ये पानी नहीं चाहिए, मैंने ये पानी अब नहीं पीना है। वो देख बाबा, सामने मदीने वाला नाना अपने हाथ में आब कौसर का जाम लिया। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये 6 माह का लाल, ये तो दुखों का आदी नहीं है, ये तो बाकायदा अभी प्रैक्टिकल लाइफ में ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इम्तिहान के मैदान में निकला है। और देखिए, वहां भी बाप बेटा है, यहां भी बाप बेटा है, वहां पट्टी बांध के बाप आ रहा है, हाथ बांध के बेटा आ रहा है, यहां बाप की आंखों पे भी पट्टी नहीं है, 6 माह के प्यासे की आंखों पे भी पट्टी नहीं है। दोनों इस्तकामत और जुर्रत की चट्टान बन के आए। यहां मैं बिल्कुल पुरसरात पे खड़ा हूं, आप नहीं महसूस कर रहे हैं। आपका कोई मुखालिफ जरूर आपको इस तरफ मुतवज्जा कराएगा कि शाह साहब तो नबियों की तौहीन। इम्तिहान और है। बात सिर्फ इतनी है कि उनको फैज मिला है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वो जो लेटे हुए हैं मीना में, उनको फैज मिला है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, या उनको फैज मिला है सैयदा हाजरा की गोद का। हजरत अल्लामा इकबाल ने भी तो कहा, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी। अब बड़ी अजीब बात है, हमारे मुखालिफीन भी इस शेर को पढ़ते हैं, बल्कि मुझे 1-2 केसेटें मिली हैं मेरे मुखालिफीन की, जो सरगोदा से एक मौलाना साहब हैं जिनका अक्सर हाजमा खराब रहता है, तो वो अक्सर वो जब ये बात करते हैं तो वो कहते हैं ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, वो अक्सर ये पढ़ जाते हैं। तो अगले दिन वो अपना
सरगोदा में बिल्कुल उनके इदारे के सामने मेरा खिताब था, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा मौलाना मैंने आपका कैसेट सुना है, आप कहते हैं ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, आप भी फैज को मानते हैं? आप भी नजर का फैज मानते हैं? आप तो बड़े तौहीद को चाहने वाले, आपको तो चाहिए था कि अल्लाह ने उनको हौसला दिया, आप फैजान नजर की बात कर रहे हैं। सैयदा हाजरा फैज दे सकती हैं, सैयदा फातिमा नहीं दे सकती। अब हुजूर जरा तवज्जो की, मैं नबी से मुकाबला नहीं करा रहा हूं, ये उसकी अता है। ऊंची आवाज से बोलिए, ये उसकी अता है, यहां कोई मुकाबले वाली बात नहीं होती। मुझे ये बताइए ना, एक सहाबी है, एक ताकतवर है, वो तो हाथी नहीं मार सकता, अबाबील मार रहा है, तो कल आप क्या कहेंगे कि अबाबीलों को हमने नबियों से बढ़ा दिया है? ऊंची आवाज से बोलें, क्या अबाबीलों का मर्तबा नबियों से बढ़ गया? नहीं, ये तो उसका करम है, वो जिससे चाहता है काम ले लेता है। वो चाहे तो नबियों से काम लेता है, वो अगर चाहे तो करबला में हुसैन से काम ले लेता है। तो ये कोई मुकाबले वाली बात नहीं है। इसमें कोई ये कहे आपसे, तो आप ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप कोट करेंगे, ताकि कोई भी ऐसी सूरत पैदा ना हो कि आप उलझ जाएं और आप बात को फिर समझ ना सके। अब जरा गौर कीजिएगा, हुजूर वाला वो आंखों पे पट्टी बांध के आ रहा है, ये खुली आंखों के साथ मैदान में आ रहा है। और हुजूर वाला आप तारीख के इस चैप्टर को कब तक क्लोज किए रखेंगे? ये वर्क आप कब तक खोल के नहीं पढ़ेंगे कि जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे की गर्दन में तीर आके पैवस्त होता है, उस वक्त चलो आप ये कह लें कि भूखा था बेटा, प्यासा था, इसलिए चीख मारने की उसमें इस्तिताअत ही नहीं थी, फिर भी ये तो जरूर मानोगे ना कि हुसैन का तो 6 माह का बच्चा भी था, वो चीखा नहीं, वो तड़पा नहीं है, वो किसी भी हालत में वो अल्लाह ताला सारे वो बना देता है, सोर्स बना देता है। तो तकदीर ने जब ये देखा आंखों में आंखें डालकर, तो हजरत इमाम हुसैन ने तकदीर को बताया कि तू जहां भी आई है, जिस करबला में भी, तूने बड़े बड़ों की आंखों से आंसू निकलवा दिए, आज आ जरा मेरे असगर के सामने, आज आ जरा मेरे लाडले के सामने। और जब तकदीर ने आंखों में आंखें डालकर पूरी कुव्वत सरफ की कि असगर तड़प उठे, असगर बिलबिला उठे, असगर चीख उठे, लेकिन असगर का हौसला देखकर तकदीर भी रो पड़ी कि मौला हुसैन तो हुसैन रहा, हुसैन का 6 माह का लाल, इसकी मिसाल भी दुनिया में नहीं है। मैंने गालिबन यहां नहीं किसी स्टेज पे ये बात की। हम ये देखते हैं कि ये मैं किसी को हूट नहीं कर रहा हूं, मेरी आदत नहीं है, और वैसे भी मेरे वतन अजीज के हालात अब इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई सख्त बात करें और हालात को मजीद उलझाव के रास्ते पे ले जाएं। हम तो वैसे या रसूल अल्लाह कहने वाले अमन पसंद लोग हैं, और सारी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है। आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे। हुजूर आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को जब मैदान जंग में भेजते हैं तो उनको सरकार झंडा देते हैं कि नहीं देते? आजकल ये काला झंडा एक बड़ा नजर आता है, तो मैं जरा उसके बारे में थोड़ी सी एक बात अर्ज करूं, और वो भी प्यार के साथ दावत फिक्र दूंगा अपने साथियों को, वो थोड़ा सा गौर करें कि वो किस रास्ते पे दौड़ते चले जा रहे हैं, वो क्या करते चले जा रहे हैं। हुजूर इस्लाम का बाकायदा जो झंडा है उसका बेसिकल रंग जो है वो है व्हाइट। इस्लाम के झंडे का रंग है सफेद, लेकिन मैं इससे भी इनकार नहीं करूंगा काला झंडा भी इस्लाम का है। यानी ये नहीं है कि मुखालिफत करने को उतरा है, हम कहें जी कि काले झंडे का वजूद ही कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि काला झंडा भी सरकार ने खुद बनाया, मैं ये भी मानता हूं कि काला झंडा भी सरकार ने खुद अपने सहाबा को अता फरमाया, इससे मेरा इनकार नहीं है। लेकिन हुजूर थोड़ा सा हकायक को देखिए कि इस्लाम का इब्तदाई दौर था, कपड़ा खत्म हो गया,
सफेद झंडे आप मुख्तलिफ दस्तों को, लश्करों को देते रहे, कपड़ा खत्म हो गया। एक मरहले पर झंडा बनाने की जरूरत पड़ी तो कपड़ा मौजूद नहीं था। उम्मुल मोमिनीन, अब जरा दिल पे हाथ रखिएगा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर पाक जो काले रंग की थी, सरकार ने उससे झंडा बनाया। मैंने कुछ कहना है अपने साथियों को, सरकार ने उससे झंडा बना के अपने लश्कर को दिया, वो काला झंडा लेकर चले, और ये झंडा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर पाक का है, चादर पाक का है। अब ये काला झंडा शुरू होता है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर पाक से, तो जाहिर है जहां भी ये झंडा लगेगा उसी चादर की याद आएगी, उसी चादर की याद आएगी। तो फिर थोड़ा सा तो इंसाफ कीजिए, या उस चादर को उठा के ना चलें या गालियां ना निकालें। बात समझ में आ रही है? सही, ये झंडा तो है ना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहीं कल को कोई आपको ये ना कहना शुरू कर दे, आखिर किसी की जुबान हमने पकड़ तो नहीं लेनी है। जो भी तारीख का, हिस्ट्री का मुताला करेगा, कब तक लोग इल्म से नावाकिफ रहेंगे, नाआशना रहेंगे? आखिर एक वक्त तो आएगा जब तारीख को दुनिया पढ़ेगी, और जब पढ़ेगी तो लोग फिर आपसे पूछेंगे कि ये आपकी दोगली पॉलिसी कैसी, आप क्यों इस तरह करते हैं? फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग ये समझना शुरू कर दें जैसे कि एक हकीकत है कि आप चले ना करबला में, तो वजह है जी, आप चले ना करबला में मेरे साथ। आप जब करबला में चलेंगे तो एक हकीकत आपको नजर आएगी कि यजीद ने अपनी पूरी फोर्स लगा दी कि इमाम हुसैन का सर झुका दे, इमाम हुसैन को झुका दे, इमाम हुसैन को झुका दे, इमाम हुसैन को झुका दे। लेकिन यजीद की बेबसी का आलम ये देखिए कि हुसैन शहीद होने के बाद भी सबसे ऊंचा था। हुसैन शहीद होकर भी सबसे ऊंचा था, नेज़े की नोक पर था, सबसे ऊंचा था, सरदारों से ऊंचा था, सालारों से ऊंचा था। यजीद के ईवान में गया तो वहां भी सबसे ऊंचा बैठा हुआ था हुसैन। हुसैन को हर मकाम पर रब ने ऊंचा किया, बुलंद किया। तो हुजूर जरा गौर कीजिए, यहां हुसैन को झुकाना चाहते थे, रब ने उसे बुलंद कर दिया। ये गालियां दे रहे हैं, रब ने उसकी चादर को बुलंद कर दिया। हुजूर, मेरी डेनमार्क वालों से मुखालिफत है, परचम जला रहे हैं हम, ऊंची आवाज से बोले। डेनमार्क वालों ने, उन्होंने गुस्ताखी की है सरकार की, और मैं डंके की चोट पर यह बात कहता हूं, अरबाब इख्तियार भी कान खोलकर सुन ले, ये जेलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती, ये हथकड़ियां हमारे बाजुओं का जेवर हैं, और ये तख्ता दार पर लटकने वाला फांसी का फंदा हम गले का हार समझ के कबूल करेंगे अगर नबी की मोहब्बत में हमें मिले तो। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं बाकायदा ईवान में जाकर बाकायदा मैं ये बात कर चुका हूं, और बाकायदा इस पे मैं कोई तकरीबन 30 सफ़हात पे मुश्तमिल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ को लेटर भी लिख चुका हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब, अगर आप सैयद हैं तो आपकी रगों में दौड़ने वाला खून तकाजा करता है कि ज़हरा के बाबा की इज्जत पे अपने आप को कुर्बान कर दीजिए। ये हुकूमत चंद दिनों की है, ये सदा नहीं रह जानी, लेकिन एक बात पूरी दुनिया जानती है कि जो भी मोहम्मद अरबी के नाम पे मर मिटने को तैयार हुआ, ये हुकूमतें उनके कदमों की ठोकरों में पड़ी। हम डेनमार्क वालों को अच्छा नहीं समझते, पूरे वतन अजीज में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनके परचम जलाए जा रहे हैं, उनको आग लगाई जा रही है। अगर तुझे भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कोई मुखालिफत है, अच्छा नहीं समझता, तो उनकी चादर के रंग वाले झंडे को उठाए क्यों फिरता है? जला दे इसको, ना लगाया कर इसको। और अगर तू लगाता ही है तो फिर ये सोचा तो कर कि तेरे हर इमाम बारगाह के ऊपर रंग किसका है, तेरे हर जलूस पर इख्तियार किसका है, तेरे हर घर पर झंडा किसका लगा हुआ है।
میں دعوت فکر دوں گا اپنے ساتھیوں کو، شیعہ حضرات کو، کہ یا تو وہ اما عائشہ الصدیقہ کی مخالفت ترک کر دیں، نہیں تو ان جھنڈوں کو آئندہ برس سے پہلے پہلے اتار دیں، کوئی اور رنگ کا جھنڈا لگا لیں، نہیں تو اگلے برس یہ ایک ایک بچہ آپ کو بازار میں کھڑا کر کے پوچھے گا یہ کس کا رنگ ہے، یہ کس کی چادر کا جھنڈا ہے۔ اونچی آواز سے بولیے۔ رب نے جس کی چادر کو اتنی عزت دی کہ دشمن بھی اٹھائے پھرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضور؟ اونچی آواز سے بول رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم تو کچھ نہیں کہتے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہی اپنی جفاؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اور یہ تاریخ کی بات ہے، تاریخ کی ہے، حوصلہ جہاں جی چاہتا ہے ہم آنے کو تیار ہیں، کوٹ میں آ جائیں، بازار میں آ جائیں، جہاں جی چاہتا ہے، یہ حقائق ہے جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے گالی نہیں دی ہے، نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ میری ماں کی چادر کا رنگ ہے، میں تو اس سے پیار کرتا ہوں۔ اگر تو بھی اس سے پیار کرتا ہے تو جس کی چادر کو اٹھائے پھرتا ہے اس کے خلاف بد زبانی نہ کر، اس کے خلاف پھر بات نہ کر، نہیں تو دنیا کہے گی کہ یہ کیا ہے، جھنڈا بھی اٹھائے پھرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا میرے ساتھیوں کو سوچنا ہوگا، اور امید ہے کہ میرے ساتھی اگر غیرت مند ہوں گے تو وہ اما عائشہ صدیقہ کی چادر کے رنگ والا جھنڈا آئندہ برس سے نہیں اٹھائیں گے۔ وہ یہ کالا جھنڈا، اب مجھے کہتے ہیں جی یہ غازی عباس کا علم ہے، غازی عباس کا علم ہے۔ میں نے کہا جی آپ تو غازی عباس کا علم لے کے آئے، حضرت عباس کے ہاتھ میں کس کا علم تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے تو غازی عباس کا علم لگا لیا، آپ نے تو حضرت امام حسین کا علم لگا لیا، آپ نے تو حضرت شہزادہ علی اکبر کا علم لگا لیا۔ مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ حضرت عباس جس علم کو پکڑ کے پھرتے تھے وہ عباس کا علم تھا یا اسلام کا تھا؟ وہاں جنگ عباس کی لڑی جا رہی تھی یا اسلام کی لڑی جا رہی تھی؟ جب آپ عباس کا علم کہتے ہیں تو آپ حضرت عباس کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ اپنا نام بنانے نہیں گئے تھے، وہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کے۔ امید کرتا ہوں آج کا خطاب آپ کو پسند آیا، اگر پسند آیا تو اپنی محبت کا اظہار کمنٹ کے اندر لازمی کیا کریں۔ اس چینل کو فالو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے قاری محمد وقار الحسن چشتی کے نام سے، اس کے اوپر جتنے بھی صفحے اول کے خطبہ ہیں ان کے بیان اپلوڈ کرتا ہوں، وہاں ضرور سنا کریں۔ فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے فیضان حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اس کو بھی فالو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے